کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں؟ یہ بات آپ سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ سن رہے ہوں گے۔ میں نے بھی گزشتہ روز اس پر تفصیلی بات کی تھی، جس میں نے یہ کہا تھا کہ مراحل یہ جو مذاکرات جو ہیں وہ حتمی مراحل میں طے ہو گئے ہیں۔ آج میرے پاس اس کے برعکس ایک لیٹسٹ اور تازہ ترین خبر ہے، جس میں ان مذاکرات کے پیچھے کیا سٹوری کار فرما ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت جیسچر دے رہے ہیں، کیا پالیسی بھی ان کی وہی ہے؟ ایران کے ساتھ وہ پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ امریکہ ایران سے ڈر چکا ہے اور امریکہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ ایران کس حد تک آگے جائے گا اور ایران کے آنے والے وقت میں کیا عزائم ہیں وہ کیا سامنے آئیں گے؟ جاپان کا بھی ایک واقعہ سناؤں گا، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس پہ بہت ڈیٹیل بات کریں گے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے گا اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ آج کل ہاٹ ایشو ہے ایران اور امریکہ کے جنگ کے والے سے، اور میرے جیسے تجزیہ کار اور میرے جیسے نیوز اینکرز اور جرنلسٹ یہ اب ایک راگ الاپ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ ہونے کے قریب ہے۔ میں نے بھی گزشتہ روز آپس کی بات ہے یہی کہا تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ امریکہ اپنا بہت نقصان کر چکا ہے، اسرائیل کی غلط پالیسیز کی اور غلط انفارمیشن کی بنیاد پہ امریکہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے، اور امریکہ اب واپسی کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور جس طرح میں کہتا ہوں یا اور میرے ساتھی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ واپسی کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اس طرح اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس چلا گیا تو اسے ڈونلڈ ٹرمپ کون کہے گا؟ یہ بھی آپس کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس دونوں ممالک کے درمیان آپس میں شرائط کیا ہیں۔ امریکہ ایران سے چاہتا ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے، سنا ہے کہ وہ ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے ایٹمی پروگرام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیں، اور اس کا دوبارہ کبھی وہ بنیاد یا داغ بیل نہیں ڈال سکیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو اس کو تلف کر دیں، بالکل وہ یورینیم جو ہے اس کو تلف کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جو بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کا خاتمہ کر دیں، میزائل ٹیکنالوجی نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑے سادے سے ڈیمانڈز ہیں امریکہ اور اسرائیل کے۔ اب ایران ان سے کیا چاہتا ہے امریکہ سے؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے اس بات کی ضمانت دیں کہ آئندہ کبھی، مطلب ہسٹری میں، یعنی کہ مستقبل میں امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا یا کوئی تھریٹ نہیں دے گا، یہ وہ کہتے ہیں۔ اب دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں آج تک امریکن اور اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے جتنا نقصانات ہو چکے ہیں، اس کا معاوضہ امریکہ ایران کو ادا کرے گا، اور یہ معاوضہ ایک محدود اندازے کے مطابق، اگر تخمینہ تو تب ہی لگے گا جب جنگ رکے گی، اور محدود اندازے کے مطابق میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ اربوں ڈالر میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسری بات وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل اپنے اس حملے کی ایران سے معافی مانگے۔ یہ تین باتیں۔ اب میں آپ کو لے جاتا ہوں ماضی میں 1945 کی بات ہے، جس وقت ایران سے ایک اور ڈیمانڈ بھی ہے امریکہ اور اسرائیل کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعلق حماس اور حزب اللہ سے ختم کر دیں، ان کو فنڈنگ بند کر دیں، ان سے اعلان لا تعلقی کر دیں۔ یہ بھی مین ڈیمانڈ ہے۔ 70 سال سے ان کی بیس جو ہے وہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ان دونوں کے درمیان جو گارنٹر ہیں، دونوں کے درمیان گارنٹر پاکستان ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان دونوں کے درمیان آئی تھنک ترکیہ ہے، ان دونوں کے درمیان قطر بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں، یہ 2-3 ملک جو ہیں وہ گارنٹر کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
अच्छा, अब गारंटर आप समझते हैं ना, चौधरी तो दोनों पार्टियों को सुनना है और फिर मुनासिब, अगर 22 नहीं है तो मुनासिब फैसला करना है और दोनों पार्टियों को वो फैसला मंजूर होगा। अच्छा, अब 1945 में मैं आपको ले जाता हूँ। 1945 में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इनके दरमियान भी जंग हुई, जिसे आप यकीनन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। वो जो जंग हुई उसमें अमेरिकन इसी तरह के सिनेरियो में थे जैसे आज ईरान के साथ हैं। वो जंग के दौरान वो उन्हें बार बार मना करते थे जैपनीज़ को कि आप अपने हथियार डाल दें और लड़ना छोड़ दें। जैपनीज़ जो हैं वो एज ए नेशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कौम है। वो लड़ने से बाज नहीं आ रहे थे और वो रोज़ बरोज़ लड़ाई को बढ़ा रहे थे। 1945 में सुपर पावर उस वक्त भी अमेरिका ही था। अमेरिका ने अपनी जंग सही रुकवाने के लिए या अपनी रिट मनवाने के लिए आखिरकार 1945 में पहला हमला 6 अगस्त को हिरोशिमा पे किया। एटमी हमला था, आप सबको पता है, पूरी दुनिया में उसकी गूंज थी। 9 रोज़ के बाद अगस्त के महीने में, तकरीबन 15 अगस्त को आप समझ लें, 14-15 अगस्त को समझ लें, उन्होंने नागासाकी पर हमला कर दिया। जब नागासाकी पे किया तो इन दोनों शहरों के 70% अवाम, इन 70% आबादी, बिल्डिंग्स और ये शहर तबाह बर्बाद हो गए। 40 से 50 साल तक उस जहरीले और जो जौहरी हमला था उसके असरात जो हैं उनकी नेशन पर आते रहे। बच्चे जो पैदा होते थे, कोई माजूर पैदा होते थे, कोई मरे हुए पैदा होते थे, वगैरह वगैरह। यानी कि 40-50 साल के बाद जाके उनकी नेशन दोबारा मुकम्मल होना या बेहतर होना शुरू हो गई। अब हम चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप कभी गज़ा अमन मायदे के हवाले से लोगों से अरबों डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं, कभी वो किसी मंसूबे के हवाले से अरबों डॉलर इकट्ठे करते हैं, कभी वो खलीजी मालिक को कह देते हैं कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दें, हम आपकी ज़मानत है, गारंटी है सिक्योरिटी की, जो कि अब वो नहीं रहे। तो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अरबों खरबों डॉलर दुनिया से एक जगह टैक्स के तौर पे या थानेदार के तौर पे या सुपर पावर के तौर पर वसूल करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को माजी में अगर आप ले जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल, डोनाल्ड ट्रंप ना शुरू से ही थोड़े अग्रेसिव, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो डोनाल्ड ट्रंप 13 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि वो शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते थे, जिनकी वजह से उनका इंतकाल हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप की बेहतर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उस शौक की वजह से आज तक अल्कोहल के करीब नहीं गए। अच्छा, उनके अल्कोहल के करीब जाना ना जाना एक बराबर इसलिए है कि सेहत को तो साइड पे रखें, वो हर वक्त स्विंग मूड में ही रहते हैं। वैसे अल्कोहल आपने ली हो तो आपके ब्लड में शामिल हो तो आप स्विंग मूड में रहते हैं, आपका मूड स्विंग करता रहता है, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के नीचे, कभी किसी के साथ, कभी किसी के सामने। कभी आप बहुत खुश मिजाज हो जाते हैं, कभी आप बहुत दलेराना बात कर देते हैं, कभी आप आउट ऑफ द वे बातें शुरू कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अल्कोहल के बगैर इस तरह की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब बिजनेस टाइकून के बेटे थे और बिजनेसमैन तो थे, डोनाल्ड ट्रंप 70 से 80 की दहाई में एक अननोन नंबर लेते थे। उनका मशगला ये था और वो किसी ना किसी जर्नलिस्ट को फ़ोन करते थे और फ़ोन करके कहते थे कि आपको पता है कि मेरा जो बॉस है ट्रंप, मतलब कंपनी का मालिक डोनाल्ड ट्रंप, उसका फलानी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा, तो ये खबर छाप दो, मैंने आपको बता दिया। और वो खबर छप जाती थी। फिर इस तरह हर एक जर्नलिस्ट को यही कह के फ़ोन करते थे कि मैंने आपको बताया और एक्सक्लूसिवली किसी को नहीं पता। और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त मीडिया की जीनत बने रहते थे। आखिरकार 1987-88 में जाके ये बात अया हो गई कि वो डोनाल्ड ट्रंप का सेक्रेटरी या डोनाल्ड ट्रंप का मुलाजिम या एम्प्लॉय फ़ोन नहीं करता था जर्नलिस्टों को, डोनाल्ड ट्रंप खुद नंबर बदल के फ़ोन करता था। और डोनाल्ड ट्रंप फेम का इस कदर क्रेजी है, आप ये समझें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसलिंग में भी नाम कमाया, वो भी आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो प्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने क्या किया,
जो उनके अज़लों से दोस्त थे, जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि नरेंद्र मोदी मेरे ज़ाती दोस्त हैं। फिर यूक्रेन में यूक्रेनी सदर जो हैं, जिन्होंने अमेरिका के कहने पर रशिया से जंग मोल ली, यूक्रेनी सदर को अमेरिकन वाइट हाउस में बुला के किस कदर बेइज्जत किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। फिर उन्होंने बरतानिया जाके वज़ीर आज़म जो अलाए था हमेशा अमेरिका का, और प्राइम मिनिस्टर को किस कदर शटअप कॉल दी, और उधर शाही महल में जाके कितनी डिप्लोमेटिक वायलेशन की वो भी आपके सामने था। वो किस टाइम क्या कह देते हैं, किस टाइम क्या कर देते हैं, उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अब आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अरबों डॉलर लोगों से इकट्ठे कर रहे हैं अमेरिका के लिए, वो देंगे ईरान को अरबों डॉलर उनका नुकसान पूरा करने के लिए। आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान की ये डिमांड मान लेंगे कि अमेरिका और इसराइल ईरान से माफ़ी मांगे? आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आपको मैंने बता दिया कौन कौन मुज़ाकरात करा रहा है, जो मुज़ाकरात करा रहे हैं उनको पिछली दफ़ा भी जब हमला किया तो मुज़ाकरात तो हो रहे थे ना, उस वक्त भी कभी कतर में हो रहे थे, कभी ईमान में हो रहे थे, कभी सऊदीया में हो रहे थे। तो आज अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इन मुज़ाकरात शुरू भी हो जाते हैं, तो इनमें कितना का वज़न होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना खुदा न खास्ता आखिरी हरबा अपनी शिकस्त देखकर नहीं अपनाएंगे। कहने का मकसद ये है कि क्या खुदा न खास्ता ऐसा मुमकिन तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप इन मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के इस सब बातों को प्रलॉन्ग कर रहे हों। आज आपने वाइट हाउस की तर्जुमान की बात भी सुनी होगी कि ईरान अगर झुका नहीं तो इसको पहले से ज़्यादा भरपूर शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। तो अगर ये दिया जाएगा तो ये खुदा न खास्ता जौहरी हमले का प्लान तो अमेरिका नहीं कर रहा है। ये बहुत देर पहले मैं अपने वीडियो क्लिप्स में ये कह चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की कोई बात नहीं कि वो खुदा न खास्ता इन मुज़ाकरात की आड़ में या इस पूरे गोरख धंधे के पीछे जौहरी धंधा कर सकते हैं अपनी साख बचाने के लिए, अपनी अना को तस्कीन देने के लिए। उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर को अपनी बीवी समेत अगवा कर लिया था, तो दुनिया ने क्या कर लिया था उस पर? उन्होंने गज़ा में जो कुछ कर लिया था तो दुनिया ने क्या कर लिया था? उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर ईरानी एटमी तंसीबात पर मिज़ाइल मारे थे तो दुनिया ने क्या कर लिया था? वो कनाडा के बारे में कहते हैं, वो ग्रीनलैंड के बारे में कहते हैं, आप वो क्यूबा के बारे में कहते हैं, तो दुनिया क्या कर सकती है उनका? मेरे सवाल हैं आपके लिए, और दुआ करें आप भी और मैं भी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो जाए, पर मुझे होती नज़र नहीं आती। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस बाट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।